Today it is our Independence Day and we are celebrating Platinum Jubilee of our independence. I extend my heartiest greetings and warm wishes to all of you on this special occasion and wish you all a happy Independence Day. Children, this is a day to recall and remember the supreme sacrifice of our great leaders and tens of thousands of people who laid down their lives to free our motherland. The most significant aspect of our freedom is that it was won assertively and not through any aggressive practices. Today I want to know from you children what freedom means to you in the true sense of word. Does it simply mean doing what you want to and having the utmost freedom to remain as a free creature? No, it is not. Because with freedom come a lots of responsibility also. Freedom without responsibility simply leads to chaos and harbors destruction. Therefore, it becomes extremely crucial to realize our roles and responsibilities as a citizen of our country. Only then we can make our country much more beautiful and worth living. It is said India is young at 74. Isn't it interesting? Do you know what does it mean? It means we, the largest democracy of the world, has highest percentage of young people below the age of 35, which is our biggest demographic dividend. Education is the most powerful weapon you may use to change the world. Children, you are the privileged ones to have gotten an opportunity to educate yourself and become an instrument in the progress of the nation. 21st century has been the most vibrant times because of rapid advances in science and technology. It is said many of the traditional jobs won't even exist by the time you move out of the school. Therefore, it becomes imperative for you to imbibe 21st century skills which will help you to stand in good stead in today's competitive world. Critical thinking, creativity, collaboration and communication, that is 4 C's, are the most important skills you need to imbibe. Shift your focus from getting marks to attaining knowledge, from rote learning to competency-based learning. You need to be innovative and adaptable to face the unforeseen challenges and at the same time need to be resilient to rise up after failure. Because success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. It is you, the youth of our country, who will bring favorable changes in our country and take it to new heights of growth and prosperity. This is my message on this momentous occasion for all of you. Before I sign off, I wish you all a happy Independence Day once again. Let's salute all those who fought for our independence and rededicate ourselves to this great nation. Jai Hind. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 15 अगस्त, जश्न आज़ादी का वो दिन जो 1947 में आगाज़ बना उस पथरीली राह का जिस पर चलते चलते हम इस सुहाने दौर में आ पहुँचे, जो मंच बना उस जीवन नाट्य का जिस पर स्वतंत्र व स्वाभिमानपूर्ण अभिनय का मंचन करते हम आज उस रोमांचिक शिखर पर आ खड़े हुए हैं कि आज ज़रूरत है उन उपलब्धियों, उन प्राप्तियों को कौतुक व विस्मय भरी दृष्टि से निहारने की जिन्हें पाने का सपना भूदेवी को स्वतंत्र कराने के लिए प्राण देने वाले हर देशभक्त ने देखा होगा। स्वायत्तता व प्रगति के गिरी शिखर पर पहुंचे हम आज स्वयं के क्रमिक विकास को पुनः इन चित्रों के माध्यम से देखेंगे। आज हम जानेंगे कि बलिदान व समर्पण से पाई खुद मुख्तियारी का ये नन्हा पौधा कैसे बृहद पेड़ बना, कैसे घुटनों के बल चलते चलते हमारा भारत विकास की वैश्विक दौड़ में न सिर्फ भागीदार बना बल्कि विजयी भी हुआ। 1947 देश के लिए आज़ादी की खुशी के साथ साथ विभाजन की कसक भी लाया। गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता, सांप्रदायिकता, इन सब समस्याओं से जूझता हमारा हौसला एक बहुत बड़ी चुनौती के आगे था। हमारे सामने ज़रूरत थी
विभिन्नताओं से भरे समाज को संगठित व निरपेक्ष संचालन देने की। ऐसे में स्वयं के विवेक व पराक्रम से धरा को स्वतंत्र करा देने वाले देशभक्तों ने 1949 में बनाया संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके नियमों व प्रावधानों से सजी पगडंडी पर चल हमने प्रगति की मंजिल की ओर बढ़ना शुरू किया। सन 1950 संविधान के इनेक्ट होते ही हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के डेमोक्रेट्स बन गए। गफलत भरी सदियों की नींद से जागे हम सबल सशक्त जीवन पाने की वैश्विक दौड़ में शामिल हो गए। शैशव काल से उभरती हमारी आज़ादी को ज़रूरत थी सुरक्षा की, अतः अपनी स्वायत्तता को चिरंजीवी बनाने के मंतव्य से देश में गठन हुआ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। वैसे तो 1948 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी व प्रिंसली स्टेट आर्मीज को समावेशित कर इंडियन आर्म्ड फोर्स को बनाया गया, परंतु 1954 में हमने इंडियन आर्मी का विधिवत रूप से निर्माण किया। देश को आज़ाद कराने का साहस अब देश की सुरक्षा के मंतव्य से देश की सीमाओं का प्रहरी बन गया, जिसने हम देशवासियों को चैन की सांस के साथ साथ सुकून की नींद से भी आश्वस्त किया। अमन और शांति के रक्षक हमारी सेनाओं ने सन 1965 में हुए पाकिस्तान से युद्ध में जीत हासिल कर यह प्रमाणित कर दिया कि अब हम अपनी सरजमी पर बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। जंग में हुई जीत ने सैन्य विकास के कई संभावित मार्ग खोल दिए, जिसके फलस्वरूप 1965 में गठन हुआ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF का। हमारी सैन्य सतर्कता अब हमारी सीमाओं की निगहबान बन गई। बाहरी ओर से सुरक्षित होने के साथ साथ ज़रूरी था आंतरिक तौर पर आत्मनिर्भर बनना, और इस दिशा में देश की इकोनॉमी का आधार एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास को पटरी पर चलाने के लिए हमने आगाज़ किया ग्रीन रेवोल्यूशन का। MS स्वामीनाथन के प्रयासों से 1960 में भारत में आई ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने ना सिर्फ देश की भूखमरी दूर की बल्कि कई फसलों के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हमें बना दिया। इस क्रांति के तहत कृषि के पारंपरिक तरीकों की जगह मशीनों ने ले ली और राइस और व्हीट की प्रोडक्शन को इस तरह से बढ़ाया कि हम न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि इन क्रॉप्स की वैश्विक मार्केट में एक्सपोर्टर भी बन गए। सरप्रस्ती का यह कारवां बढ़ता ही गया। इस सफर का अगला पड़ाव था अक्षांश के पार की वो दुनिया जो जितनी आकर्षक व रोमांचक थी उतनी ही हमारी पहुंच से दूर। पर हम न रुके न थके। हमने अपने सीमित संसाधनों से असीमितता को पाने का सपना देखा और 1969 में यानी 1969 में 15 अगस्त के दिन ही गठन हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तारों से भरी उस दुनिया से हमारा परिचय तब हुआ जब संस्थान ने पहला भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया 1975 में। हमारे हौसलों ने बुलंदियों का किला फतेह किया 1980 में जब संस्थान ने अपना पहला SLV-3 लॉन्च किया, जिससे हमारा देश उन 6 देशों में शुमार हुआ जिनका अपना ऑर्बिट लॉन्च साइट था। अपनी आज़ाद सरजमी के साथ साथ अपनी असीमित आसमां को पाकर हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की फर्स्ट स्पेस एजेंसी बना, जिसने चांद पर पानी होने के प्रमाण ढूंढे। हमारे देश की डिफेंस सिस्टम को आधुनिक हथियारों से लैस कर हमारे देश को अजेय बना दिया। प्रतिभा प्रदर्शन से और भी निखरती है और योग्यता
प्रशंसा के दर्पण में और भी सुंदर लगती है। सैन्य शक्ति व विज्ञान का परचम फहराने के साथ साथ हमने अपनी गौरवशाली संस्कृति व सभ्यता का लोहा तो मनवाया ही, साथ ही पश्चिमी सभ्यता को न सिर्फ अंगीकृत किया बल्कि उसमें निपुणता व श्रेष्ठता भी हासिल की। परंपराओं की डोरी हाथ में थामे भारत ने पश्चिमी आधुनिकता का आस्वादन किया, क्योंकि आवश्यक था मानसिक संपन्नता के साथ साथ शारीरिक व आध्यात्मिक सबलता का परिचय भी इस विश्व को देना। संपूर्ण विश्व में त्याग, समर्पण व शांति के संदेशवाहक हमारा देश कला के व खेल के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व सिद्ध कर चुका। हमने ब्रिटिशर से न सिर्फ सरप्रस्ती छीनी बल्कि 1948 में हुए वर्ल्ड ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने फर्स्ट गोल्स जीत आज़ाद भारत का पहला मेडल कमाया। इस जीत से भारत ने विश्व को उदाहरण दिया हमारे मौन व सशक्त इरादों का। इस जीत से प्रेरित हो हमने स्वीकार की फर्स्ट एशियन गेम्स की मेजबानी, जिसने उभरते हुए आज़ाद भारत की सुंदर छवि पश्चिमी देशों के दिलों में कुछ इस तरह से अंकित की कि दुनिया में उसकी अमिट छाप आज भी दिखाई देती है। और आज 74 वर्षों बाद फिर विश्व ओलंपिक में भारत पुत्र नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पाकर विरासत में पाए देश प्रेम की मिसाल कायम की है। इन खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने एक बार फिर पुराने भारत की स्वर्णिम स्मृतियां हमारे दिल में फिर से तरोताजा कर दी हैं। उस नई ऊर्जा व उल्लास को संचारित किया है कि आज भी की विकट परिस्थितियों में हम उसी जोश, उसी जुनून से आज़ादी का पावन दिन मना रहे हैं।